खेल में योजना, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। योजना का मतलब और लक्ष्य, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। योजना लक्ष्य स्थापित करने और उन्हें प्राप्त करने का तरीका डिसाइड करने की एक प्रक्रिया है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अकम्प्लिश देम। खेल में योजना की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है और नतीजे भी बहुत साफ और निश्चित रूप से पता होते हैं। Planning in sports is required because there is a definite time frame for achieving the objectives and the results are also known very clearly and in definite terms. योजना के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं। Objectives of planning are given below. 1. लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति, timely achievements of targets। यह सुनिश्चित, ensure, करना कि लक्ष्य सही समय पर प्राप्त हो जाएं। This is to ensure that the targets are achieved on time. 2. सफलता का प्रतिशत बढ़ाना, improving the percentage of success। खेल में सफलता का प्रतिशत बढ़ाना, to improve the percentage of success in sports। 3. असफलता के कारणों का पता लगा आना, finding out the causes of failure। असफलता के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करना, to find out the reasons for failure and overcome them। 4. कार्यक्रम की सही समय सीमा डिसाइड करना, deciding the appropriate time duration of a program। खेल का कार्यक्रम कितने समय तक चलेगा, यह डिसाइड करना, to decide how long the sports program will run। 5. शामिल लोगों की योग्यता के अनुसार काम का विभाजन, distribution of work according to the ability of the people involved। हर खेल में लोगों की योग्यता के अनुसार उन्हें काम करना चाहिए। In each sport, people should be assigned work according to their abilities। 6. आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए बजट में रहना, remaining within the budget while achieving the required targets। कम में कम खर्च, cost, में लक्ष्यों को प्राप्त करना, to achieve the targets in the least amount of expense। खेल में समितियां और उनकी जिम्मेदारियां, various committees and their responsibilities। खेल में समितियां, खेल को सुव्यवस्थित चलाने में मदद करती हैं। Committees in sports help in conducting the sports smoothly। खेल में आयोजित करने के लिए कई समितियां भी बनाई जाती हैं। Several committees are formed to organize sports events। इन समितियों के कुछ उदाहरण और उनकी जिम्मेदारियां नीचे बताई गई हैं। Here are some examples of these committees and their responsibilities। 1. प्रचार समिति, Publicity Committee। खेल का प्रचार करना, to publicize the sports event। 2. परिवहन समिति, Transport Committee। खेल में भाग लेने वाले लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था, arrangement, करना, to arrange transportation for the participants in the sports। 3. मैदान और उपकरण समिति, Grounds and Equipment Committee। खेल का मैदान तैयार करना और उपकरण की व्यवस्था करना, to prepare the ground for the sport and arrange for equipment। 4. रिफ्रेशमेंट और मनोरंजन समिति, Refreshments and Entertainment Committee। खेल में आने वाले मेहमानों, अधिकारियों और खेल में भाग लेने वाले लोगों को रिफ्रेशमेंट्स और ड्रिंक्स देना, to provide refreshments and drinks to the guests, officials, and participants in the sports। 5. स्वागत समिति, Reception Committee। आरंभ और समाप्ति समारोह में मुख्य मेहमानों का स्वागत करना, to welcome the chief guests at the opening and closing ceremonies। 6. प्रवेश और कार्यक्रम समिति, Committee on Entries and Programs। खेल में भाग लेने के लिए आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म, भेजना और मेहमान और दर्शक, स्पेक्टेटर, के लिए जगह की व्यवस्था करना, to send application forms to participate in the sports and arrange seating for guests and spectators। कभी-कभी ये समिति खेल में भाग लेने वाली टीम्स का फिक्सचर भी तैयार करती है। Sometimes this committee also prepares the fixture of the teams participating in the competition। 7. अधिकारी समिति, Committee for Officials, Referees, Judges, Umpires वाड़ी जैसे खेल के लिए खेल में टूर्नामेंट्स इन स्पोर्ट्स। हम सिर्फ पहले 3 टूर्नामेंट्स की डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये 3 टूर्नामेंट्स सिलेबस में शामिल हैं। We will cover in detail the first 3 tournaments only because these 3 tournaments are included in the syllabus। बाय एक टीम को दिया गया एक विशेष अधिकार है जो या तो सीडिंग द्वारा या फिर चिट्ठियों से निकला जाता है। Bye is a privilege given to a team which is decided generally by seeding it or by draw of lots। नॉकआउट टूर्नामेंट के फायदे, Advantages of knockout tournaments। 1. कम अधिकारियों की जरूरत, Minimum number of officials are required। नॉकआउट टूर्नामेंट्स में कम अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। Fewer officials are required in knockout tournaments। 2.
कम मैचेस की वजह से कम समय में पूरा हो जाता है। Owing to less number of matches, so it takes less time to complete the tournaments. नॉकआउट टूर्नामेंट्स में कम खेल होते हैं, इसलिए ये जल्दी खत्म हो जाते हैं। There are fewer matches in knockout tournaments, so they are completed quickly. 3. खेल के स्टैंडर्ड को बढ़ने में मदद करता है। It helps in enhancing the standard of sports. नॉकआउट टूर्नामेंट खेल के स्टैंडर्ड को बढ़ने में मदद करते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। नॉकआउट टूर्नामेंट के नुकसान, डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स। 1. अच्छी टीम्स भी पहले राउंड में खराब परफॉर्म करने की वजह से हार जाती हैं। गुड टीम्स कैन गेट एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ देयर पुअर परफॉर्मेंस इवन इन फर्स्ट राउंड। नॉकआउट टूर्नामेंट में अच्छी टीम्स भी पहले हाई राउंड में हार जाती हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। Even good teams can get eliminated in the first round of a knockout tournament if they don't perform well. 2. कमजोर टीम्स के फाइनल राउंड में पहुंचने की ज़्यादा चांसेस होती हैं। There are maximum chances of weak teams to enter into the final round. नॉकआउट टूर्नामेंट में कमजोर टीम्स के फाइनल राउंड में पहुंचने की ज़्यादा चांसेस होती हैं। There are higher chances of weak teams reaching the final round in a knockout tournament. लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स। लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स। लीग टूर्नामेंट, जिसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें हर खेल में हर एक दूसरे खेल से बीदत्ते बारी बारी खेलता है। इज अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन विच ईच कंटेस्टेंट मीट्स ऑल अदर कंटेस्टेंट्स इन टर्न। इस प्रकार के टूर्नामेंट में टूर्नामेंट को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट देयर हैज टू बी सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट द टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट के 2 प्रकार होते हैं। There are 2 types of league tournaments. 1. Single league. 2. Double league. एक सिंगल लीग राउंड रॉबिन शेड्यूल में हर भाग लेने वाला हर एक दूसरे भाग लेने वाले के साथ एक बार खेलता है। In a single league round robin schedule, each participant plays with every other participant once. अगर हर भाग लेने वाला दूसरों के साथ 2 बार खेलता है तो इसे आदि बहुत बार राउंड रॉबिन डबल लीग टूर्नामेंट बोला जाता है। If each participant plays with others twice, this is frequently called a round robin double league tournament. Single league, खेलों की संख्या equals n घटाव 1, 2, n equals समूह की संख्या, number of matches equals n घटाव 1, 2, n equals number of teams. Double league, खेलों की संख्या equals n1, n equals समूह की संख्या, number of matches equals n1, n equals number of teams. फिक्सचर, कोई भी टूर्नामेंट, चाहे वो नॉकआउट हो या लीग, एक निश्चित प्रोसीजर के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है जिसे फिक्सचर के नाम से जाना जाता है। Any tournament, whether it is knockout or league, is arranged according to a set procedure which is known as a fixture. नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए फिक्सचर बनाने की विधि बाय और सीडिंग के द्वारा होती है। For knockout tournaments, the procedure to draw fixture is through buy and seeding. लीग टूर्नामेंट्स के लिए फिक्सचर बनाने की विधि स्टेकेस और साइक्लिक मेथड के द्वारा होती है।